From New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, गुड न्यूज़ है आप सबके लिए कि एक ख़बर है जो अभी चंद घंटे पहले सामने आई है, और वो ये है कि अभी तक लोग गैस वर्क से काम ले रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात जब आसिम मुनीर से हुई तो क्या उसमें इमरान खान के मसले पे बात हुई या नहीं हुई, उनकी रिहाई पे बातचीत हुई या नहीं हुई। कोई वाज़े तौर पे कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, नहीं दे सकता था ना। तो अब ये ड्रॉप साइट जो एक वेबसाइट है जो बड़ी ज़बरदस्त तहलका खेज़ ख़बरें देते हैं, उन्होंने ये चीज़ वो ख़बर ये सामने लाए हैं कि जी हाँ, उस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर साहब से, आसिम मुनीर से कहा कि देखो, मेरे इलेक्शन के जिताने में पाकिस्तानी डायस्पोरा ने बड़ा नुमाया काम किया था, मुझे सपोर्ट किया था, और मैंने उनसे ये वादा किया था कि मैं जब मुंतखब हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारा ये मसला, इमरान खान वाला मसला, मैं हल कराऊंगा, तो तुम ज़रा इसको देखो, इस मसले को हल कर लो। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। अच्छा, अब इसकी कंफर्मेशन कोई नहीं दे पा रहा था। अब ड्रॉप साइट ने बताया है कि इस मीटिंग में 8 लोग मौजूद थे, जिसमें से 4 का ताल्लुक़ अमेरिका की तरफ से था और 4 का पाकिस्तान की तरफ से था, जिसमें पाकिस्तान के नामों में एक नाम वाज़े तौर पे मोहसिन नकवी साहब का है कि वो भी वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, अब ये ख़बर जो है, इसमें भी अभी तक ज़रा थोड़ा सा वो चल रहा है कि ये ऑथेंटिकेशन चाहिए ख़बर की। तो एक साहब ने तो कहा है जो वहाँ उनमें से मौजूद थे कि जी हाँ, ये बात हुई थी। दूसरे साहब ने उसको ज़रा सा वेग किया है, पता नहीं क्यों ऐसा किया है, लेकिन मोस्ट प्रॉबली लगता है कि ऐसी बात हुई होगी। अगर ऐसी बात हुई है तो ये बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के हक़ में। अच्छा, आज ये बात रायन ग्रिम ने वहाँ पे पाकिस्तानी डॉक्टर्स के जो सालाना कन्वेंशन हो रहा है डैलस में, उसमें अपनी तकरीर में बताई। ये तकरीर भी जो है उनकी मैं भी आपके सामने पेश करता हूँ, आप इसको देखिए और ज़रा गौर से देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। Field Marshal, wow, what a cool. He said Field Marshal. You know, I had a lot of help from my Pakistani friends to get elected president. I have a lot of Pakistani friends. They want the Imran Khan situation resolved. I need the Imran Khan situation resolved. So he said this directly to him. Munir has done very little since then to suggest that he took that very seriously. But as of now, an hour or two ago, that news is public that Trump did tell that directly to Munir, that he wants him to resolve this, that he wants him to resolve it in a way that would be satisfactory to his friends in the Pakistani American community who helped him get elected. I know I was asked to speak a little bit about the relationship between kind of independent media and mainstream media here. And one thing I will say is that as we were getting close to publishing on the cipher, I asked our source. I said, why did you end up coming to us with this explosive, kind of world-changing piece of news? Like, why? Like, just curious. Like, why us? And he said, I can't go to any news outlet in Pakistan. He's like, I know for a fact, like all of them, have tentacles of intelligence in them, and the military in them. And so it would immediately come back to whatever source. And also they wouldn't even if you could get it to an honest reporter there, they would not be allowed to publish it by the owners of the media outlets. So the Pakistani news outlets are off the table. And he said, the major global news outlets like the BBC or the New York Times, the Guardian, they all, often are serving as not necessarily like entangled arms of the foreign policy of the countries that they're in, but they're weighted down by their relationships to the foreign policy of their particular country, and also
if you're the New York Times or the Guardian or BBC or what have you, and you have a correspondent who is in Pakistan or multiple correspondents in Pakistan, that's a leverage point. And in the case of the New York Times, for instance, like there's all sorts of there's all sorts of connections to the reporters that are in Pakistan to military or to the intelligence services, and we can't trust them either. So they're off the table. It becomes this process of elimination. So it's like, who are the news organizations that have international or national credibility? अच्छा साहब, आपने रायन ग्रिम को सुन लिया कि वो क्या कह रहे हैं. जो बात मैंने आपसे बताई उर्दू में, वही बात ऑलमोस्ट उन्होंने आपसे अंग्रेज़ी में बताई है. अच्छा साहब, तो ये एक गुड न्यूज़ है. अब देखिए, बहुत सारे लोग जो है, जो बेचैन लोग हैं, वो ये सवाल करके मुझसे, कल से मेरे जो दोस्त जो हल्का अहबाब है, वो ये पूछ रहे हैं कि जो इमरान खान के बेटे आए हुए हैं, डिड दे मीट विद प्रेसिडेंट ट्रम्प? और अभी ऐसा हुआ नहीं है. वो मुझसे ये जवाब सुनना चाहते हैं, यस दे हैव हैड अ चांस टू मीट विद प्रेसिडेंट ट्रम्प. मैं कैसे ऐसी बात कह दूं? वो कहते हैं नहीं, आप कंफर्म करें. कंफर्म क्या करें? कुछ हुआ ही नहीं है तो कंफर्म कहाँ से करें? तो ऐसी बात नहीं है. उनकी अभी हो जाएगी मुलाकात, जो उनके ऑफिसेस हैं, मेरा जहाँ तक नॉलेज है, इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी. लेकिन ये बहरहाल बात सामने आ गई है. ये एक अच्छी न्यूज़ है और इंशाल्लाह इसके फ़ायदे होंगे. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. अपने पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए, पूरे पाकिस्तान को मैं ये बात बताना चाहता हूँ. देखिए, पाकिस्तानियों ने किस मेहनत से काम किया है. कांग्रेस में जा रहे हैं, इसके पास जा रहे हैं, और कुछ लोग कहते थे कि ये जो आप बातें करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा. अभी शायद कल या परसों ही मैंने इस पे भी एक वीडियो की थी कि जिसमें मैंने बताया था कि 15 जुलाई को, इस महीने की 15 जुलाई, जून की डेट है उनकी, 15 तारीख को वो आ रहा है जुल्फ़ी बुखारी, कांग्रेस की एक कमेटी में प्रेजेंटेशन देने के लिए कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के मुताल्लिक़. तो एक साहब कहेंगे इसका फ़ायदा क्या होगा, कि वो छूट जाएंगे. मैंने उस वक्त भी मैंने बताया था कि देखो, हर तरफ से प्रेशर डेवलप किया जाता है. मुल्क के अंदर से तुम लोग करो, मुल्क के बाहर से हम करें. मुल्क के बाहर बैठ के पाकिस्तानी डायस्पोरा ने ज़बरदस्त वंडरफुल काम किया है, जिसमें एपेक का जो काम है, ये जो तंजीम है एपेक, ज़बरदस्त फिनोमिनल काम किया है इन्होंने. हमारी एक तंजीम है न्यूयॉर्क में, एपी पैक, जिसको डॉक्टर एजाज चलाते हैं. उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है. उन्होंने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोला है कम्युनिटी के लिए. एक ज़माने में वो हिलरी क्लिंटन जो थी, उनको $1 मिलियन उन्होंने जमा करके दिए थे, और उसके बाद से जो दरवाज़ा खुला है, तो पाकिस्तानी आर हाईली मोटिवेटेड, मार्चिंग एवरीवेयर. इस मुल्क के हर बड़ी स्टेट के गवर्नर या उसके पीछे, सेनेटर के पीछे पाकिस्तानी आपको ज़रूर मिलेंगे, सपोर्ट करते हुए, फाइनेंस करते हुए, उनको पैसे देते हुए, वोट उनके लिए जमा करते हुए. ये पाकिस्तानियों का किरदार रहा है. अच्छा, इसकी खूबी क्या हुई है, जिस बात से मैं एक्साइटेड हूँ, वो ये है, मैं अक्सर दोस्तों के साथ ये डिस्कशन चलते हैं तो मैं कहता था कि अगर हम इस बात में कामयाब हो जाएं कि अमेरिकन पॉलिटिशियन का दिमाग इस बात को कबूल कर ले कि ठीक है, पाकिस्तानी अमेरिकन ख़ुद तो इलेक्शन यहाँ खड़ा होकर नहीं जीत सकता, लेकिन अगर ये अपना वज़न जिस पल्ले में रख देगा, वो जीत जाएगा, या जिसके पास नहीं जाएगा, ये वो हार जाएगा. ये सोच अगर हम अमरीकी सियासतदानों के जहन में लगा दें, वहाँ तक पहुँच जाए, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तान के लिए, मुस्लिम उम्मत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी. और ये कामयाबी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह. देखिए, जो इनकी न्यूज़ के मुताबिक, ड्रॉप साइड की, कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का अगर ये कहना हो आसिम मुनीर से कि मैं पाकिस्तानी अमेरिकन के वोट की वजह से जीता हूँ, और मैंने उनसे ये वादा किया था कि मैं जीतने के बाद ये मसला हल कराऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि आपने अमेरिकन प्रेसिडेंट के जहन में ये जगह बना ली. और आज मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ, कुछ यहाँ पे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन मेरे दोस्त हैं, जो उनके साथ कभी कभी काम करता हूँ, तो साहब उनके जहन में भी अब ये बात आ गई है
کہ سیاسی طور سے بڑے تیز دماغ کے موٹیویٹڈ لوگ ہیں پاکستانی. کہتے ہیں کہ بھئی آئرش جو ہیں وہ ان کا نمایاں کردار امریکہ میں اس میں یہ کیا ہے فائر انجن فائر ڈپارٹمنٹ میں ہے، یا اٹالین جو ہیں وہ ریسٹورنٹ بزنس میں ہیں، یا ہر ایک کی کمیونٹی کی ایک پہچان ہے. پاکستانی کمیونٹی کی کیا پہچان ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہائیلی موٹیویٹڈ پولیٹیکل ورکر ریڈی ٹو لیڈ، قیادت سنبھالنے والے لوگ، پولیٹیشین کو کامیاب اور ناکام بنا دینے والے لوگ. یہ پاکستانی امریکن کا امیج ہے. تو یہ بہت اچھا امیج ہے، اس سے پاکستان کو بہت مدد ہوگی. میں اکثر کہتا ہوں عاصم منیر صاحب، آپ کے آنے پہ لوگ یہاں پہ آپ کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، ایسے کام کیوں کرتے ہو؟ ایسے کام کر لو کہ ہم تمہاری مدد کریں جب تم یہاں پہ آؤ. کوئی بھی جرنیل آئے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ اگر اس کا نیک نام ہے اور وہ کوئی ایسے ظلم تشدد نہیں کرتا تو ہمیں تو یار کسی سیاسی پارٹی سے کسی جرنیل سے کوئی ذاتی وہ نہیں ہے. ہمیں تو صرف پاکستان سے محبت ہے. اس کے لیے پاکستانی ڈائسپورا جو کچھ بھی ہوگا وہ کرتا ہے اور کرے گا. اور اب ہم اس پوزیشن میں ہیں ماشاءاللہ کہ دیکھیے آج یہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. آج میں آپ سے کہتا ہوں کوئی بھی بڑا سینیٹر امریکہ جو ہے امریکہ کا، اس کے پیچھے ہمیشہ آپ کو کوئی پاکستانی ضرور ملے گا. اور یہ ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے تو کام کر دکھایا ہے. دیکھیے یہ ان کی محنت ہے، یہ اے پی پیک والوں کی محنت ہے، جس میں بزنس مین بھی ہیں، ڈاکٹرز کی تعداد شاید زیادہ ہے. تو یہ لوگ ایک ایسا زبردست کام کر رہے ہیں یہاں پر. اس کی مجھے بڑی خوشی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اب دعا کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے عمران خان کا، اور یہ کوئی ایسی چیزیں پاکستان میں پیدا نہ ہوں اور مل کر ہی کام کرنا چاہیے. دیکھیے جرنیلوں کو عمران کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے. ایک دوسرے کی کچھ غلطیاں تو ہوں گی نا، تو یار ہر ایک کی سے ہوتی ہیں، ان کو معاف کرو، آگے بڑھو، رستہ چھوڑو پیچھے آنے والوں کے لیے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شب بخیر. گڈ نائٹ. گڈ لک.